Okay, two molecules of carboxylic acid on heating loses one water molecule. और जो प्रोडक्ट बना लिखो से स्ट्रक्चर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ. ओके, से ज्वाइन हो गया. और यू मे राइट दिस थिंग लाइक आर सी ओ. ये चीज लिखी अभी 2 टाइम्स, नीचे वाला भी है ओ, दिस ऑक्सीजन. ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड. ठीक है, इट इज अ डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCO 2 times O. This is acid anhydride. ठीक है, if R is CH3, then this compound is acetic anhydride. ठीक है, so back to our esterification reaction. Salicylic acid. Salicylic acid is this compound, this 2-hydroxy benzoic acid on treatment with acetic anhydride. Esterification reaction takes place by using OH group of phenol, okay, this salicylic acid, and CH3CO group of acetic anhydride. Okay, this group joins as COOH O COCH3. They'll form aspirin plus acetic acid. मैं साइड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं. गुरसिदक आवाज आ नहीं रही? Am I not audible? सर मेरी आईडी है, मेरा नाम चेंज कर दो, मैं वो लैपटॉप तो लॉगिन किया. नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, होने दो. ठीक है, रिएक्शन दोबारा देखो, जिनको समझ आ गई गुड, जिनको नहीं समझ आई प्रेपरेशन ऑफ एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, दोबारा देखो, मैं दोबारा लिख के ही कर रहा हूं. One molecule of salicylic acid. Salicylic acid is this COOH OH. This compound is known as salicylic acid or 2-hydroxy benzoic acid. This compound on treatment with acetic anhydride. अब मैं acetic anhydride का ओपन स्ट्रक्चर लिख रहा हूं. This ठीक है. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. क्या हो गया था? सर दूसरे डिवाइस से किया अब लॉगिन, उससे हो नहीं रहा था. ओके, वो ज्यादा यूज कर लिया होगा तूने. हो सकता है सर. चलो एनीवेज, ठीक है, इसे अलग कर दो और जो बाकी पार्ट है उसे ज्वाइन करो. यू विल गेट योर प्रोडक्ट थ्रू ऑक्सीजन. इस पार्ट को ज्वाइन कर दो. सेम कलर ज्वाइन करके देखो, प्रोडक्ट बन रहा है.
COOH group, carboxylic acid group remain as it is. O, C double bond O, CH3. Okay, this compound formed as known as aspirin. ठीक है, और जो बाकी बचा उसे ज्वाइन करो, that is CH3COOH, acetic acid. Okay, this is how aspirin is prepared from salicylic acid. It is a esterification reaction. Okay, preparation method for aspirin. सर Yes. सर ये लिखनी है अभी। हाँ जी, यही रिएक्शन करवाई है. इट इज द प्रेपरेशन ऑफ एस्पिरिन. ठीक है, लास्ट टाइम ये मिस हो गई थी. वही है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, चेंज नहीं करी. निमिषा वहां से लिख रही है, वहां से लिख ले. वैसे मेन ये था. यहाँ से प्रेपरेशन ऑफ एस्पिरिन. ठीक है, इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन. सेकेंड रिएक्शन होगी. फर्स्ट रिएक्शन वाज acidic nature of alcohol phenols. Second was esterification reaction. आज थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, reaction with hydrogen halides, reaction with HX. okay, reaction चेक करो. फर्स्ट वन करी हुई है. ROH plus HX forms RX. like example CH3OH combines with HCl to give CH3Cl plus H2O. So basically delta negative, delta positive identify करो. positive negative, just a substitution reaction. Here OH group is being substituted with chlorine. reaction करी है आपने. This reaction is in first chapter, preparation of haloalkane. ठीक है, बस नीचे जो important point है उसे याद रखना. Mix this reagent, concentrated HCl and ZnCl2. It is known as Lucas reagent. It is known as Lucas reagent. Okay. Next is reaction with PCl3 और PBr3. This reaction, ये भी reaction आपने करी हुई है ना पहले. Alcohol plus PCl3 forms alkyl halide and phosphorus acid. Alkyl halide, in this case it will be alkyl chloride and phosphorus acid. एक एग्जांपल कर लो. CH3 CH2 OH plus PCl3. प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2 Cl plus H3PO3. Fifth is dehydration reaction and our second mechanism of this chapter. इसका mechanism भी करना है. Hydration में क्या था? Remember that hydration reaction alkene थी. alkene में water add करा था, alcohol बना. ठीक है, यहाँ पे opposite करना है. alcohol है,
अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना है, मींस वाटर रिमूव करना है। वाटर रिमूव करोगे क्या बन जाएगा? एल्कीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन फॉर्म्स एल्कीन। ठीक है, इट इज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो यहाँ पे लिखा है अल्कोहल टू एल्कीन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करना है। पहले यहां तक पहुंच जाओ। लेट मी नो व्हेन यू आर डन। गगन वापिस आ गया जितों घूमन गया होया सी? है तू क्लास में? हाँ जी सर। अच्छा जी, ठीक है। किन्ने दिन घूम के आया? सर 2 दिन सीगा। ओके, ठीक है। करमन तू भी नाल ही सी? नो सर। फिर तू क्यों नहीं लगाई क्लास लास्ट टाइम? ਸਰ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ओके, हो गया सर। हो गया, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन। okay, first is protonation. CH3CH2CH2OH gets protonated to form protonated alcohol. क्या बन जाएगा ये? It will form CH3CH2OH2 positive, this। ठीक है, अगर आपके पास मैकेनिज्म है जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का था, कंपैरिजन करके देख लो, सेम लिखवाया मैंने। CH3CH2CH2OH2 फर्स्ट स्टेप वाज प्रोटोनेशन, यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है, सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। इन दिस स्टेप CH3CH2CH2OH2 get dehydrated, means this bond is cleaved, product CH3CH2CH2 positive plus H2O। ठीक है, this is the formation of carbocation। N-propyl carbocation will be formed। In next step, CH3 CH, ऐसे ओपन करके लिख रहा हूं बच्चे, CH2 okay, almost our product is complete by the loss of one more proton। So reverse of step number 1. In step 1, protonation means addition of H positive. In last step, deprotonation, loss of that proton plus H positive। ठीक है, CH3CH double bond CH2। This is the mechanism। देख लो, पहले तो सीक्वेंस याद करो,
प्रोटोनेशन बाय नेम चेक करो, प्रोटोनेशन में क्या हो रहा है, H पॉजिटिव इज बीइंग एडेड इनटू अल्कोहल, ठीक है, CH3 CH2 CH2 OH2 प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है, एंड देन फ्रॉम प्रोटोनेटेड अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होएगा, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म कार्बोकटायन, ठीक है, and in last step deprotonation takes place to form alkene. ठीक है, मैकेनिज्म को बच्चे एक दो बार लिख के याद करना। तब भी होंगे। दो मैकेनिज्म हो गए हैं इस चैप्टर में, एक और है। और आई एम ऑलमोस्ट श्योर इन तीन मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में, मे बी ऑफ 2 मार्क बट मोस्ट प्रोबेबली विल बी ऑफ 3 मार्क्स। ओके, थर्ड देखो, डिपोटेशन, नमिशा डन हो गया? यस सर हो गया। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन इज स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन। okay, oxidation means addition of oxygen or removal of hydrogen. oxidation में oxidation of alcohol, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, इनफैक्ट मैं इसे दोबारा ही कराता हूँ। लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। चेक करते हैं कैसे। अल्कोहल देखो, अल्कोहल इज आर CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव करो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑक्सीडेशन, 2 हाइड्रोजन रिमूव करनी है बच्चे, वन दिस अनदर दिस, ठीक है, try to write the structure of product formed on oxidation, it will change into R C H double bond O, क्या बन गया ये, इट इज एन एल्डिहाइड, ठीक है। अब जो एल्डिहाइड बना फिर दोबारा ऑक्सीडाइज करो, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन, ठीक है, प्रोडक्ट विल बी R C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। सो कहने का मतलब है सीक्वेंस क्या है, अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन forms aldehydes, aldehydes on oxidation form carboxylic acid. This is the sequence.
रिपीट करूं, अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, which on further oxidation forms carboxylic acid, means carboxylic acid end product है ऑक्सीडेशन के, ठीक है। अपने दिमाग में रिवर्स देखो, रिवर्स ऑर्डर लर्न करने की कोशिश करो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल। इसकी आपने एग्जांपल भी करी है, इन प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। चलो एनीवेज, इसको रिएक्शन को जहां पे लिखा ना मैंने ऑक्सीडेशन, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज यू हैव टू नो द रीएजेंट। रीएजेंट से कौन से रीएजेंट से क्या बनेगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग CrO3, by using PCC, by using copper at 573 Kelvin, ठीक है। CrO3 is chromium oxide, ठीक है। PCC is pyridinium chlorochromate, अदरवाइज PCC लिख दोगे इनफ है। PCC is pyridinium chlorochromate, ठीक है। By using either of these three oxidizing agents, primary alcohol is oxidized to aldehyde RCHO by the loss of two hydrogen, one from carbon, another from OH group, lose होएंगे, ठीक है। सो प्राइमरी अल्कोहल क्या फॉर्म कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड। एग्जाम्पल देखो, मिथेनॉल, दिस एग्जाम्पल, मिथेनॉल क्या फॉर्म होगा, अर्शदीप, इथेनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद एनी ऑफ दीज, सेम बच्चे जो ऊपर रिएक्शन है, कर ट्राई। नो, सर CH3 CHO। हाँ जी, वेरी गुड, CH3CHO, ठीक है, CH3CHO, ठीक है। अब बस एक चीज याद रखो सारे, इस R का डर अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने RCH3 लिखा है, R 1000 कार्बन का भी लिख दोगे ना, हार्डली मैटर, ठीक है। रिएक्टिव पार्ट है CH2OH ओनली, ठीक है। सो एल्डिहाइड बना, इथेनॉल है ऑक्सीडाइज टू इथेनॉल, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द पार्ट, अभी नहीं, ओके। जो ऊपर एग्जांपल है और ऊपर जनरल रिएक्शन है वो है बच्चे, इधर यू कैन यूज क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 PCC और कॉपर एट 573, स्पेसिफिक करते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट रब कर रहा हूं, इन दिस, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन करनी है इसकी बाय यूजिंग PCC, ठीक है बच्चे, दो पार्ट है यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो सकती है, जहाँ की जिसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, या तो ये डबल बॉन्ड पे, ठीक है, या इस पार्ट पे। PCC इज वेरी स्पेसिफिक, वेरी सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर
आप रिएजेंट सिंगल सिंगल लिख के उसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं कोई, तो लिख लो पीसीसी विल नॉट ऑक्सीडाइज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, पीसीसी का फोकस किस पे है? टू चेंज अल्कोहलिक ग्रुप इनटू एल्डिहाइड। ओके, सो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH double bond CH single bond CHO. Okay, okay, this is enough for aldehydes. अब ketone for primary alcohol oxidation okay है, then for secondary alcohol same reagent use करेंगे by using PCC or CrO3 or copper at 573 dehydrogenation होएगी, means hydrogen remove होएगा, one from carbon and one from oxygen. Product, you can easily guess the product, R C R dash double bond O. Okay, क्या प्रोडक्ट बना? कीटोन। ठीक है, so secondary alcohols on oxidation forms ketone, जो पूरे लेक्चर में, जो इस पूरे पेज पे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको पता चले, 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कौन से? पीसीसी, CrO3, कॉपर एट 573 केल्विन। ठीक है, अपने तीनों सेंसेस इकट्ठी चलाओ, देखो भी, बट ज्यादा सुनने पे ध्यान दो और उससे भी ज्यादा पेन पे। ठीक है, इनफैक्ट मैं भी ट्रेनिंग सेशन एक तो मतलब आई अग्री, थोड़ी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन क्लासेस में। मैं खुद एग्जांपल हूँ, मैं भी एक हफ्ते से कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहा हूँ। फर्स्ट 2 डेज तो मेरे लिए इम्पॉसिबल थे, कॉन्सेंट्रेट मतलब फोकस करना, बट ट्राई टू रिमेन हियर। और आपके पास तो एक और भी अच्छी ऑप्शन है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, बाय चांस कुछ मिस हो रहा है वो लिख सकते हो। बट मैं जैसे आपको बोल भी रहा था अभी, कैसे यहीं पे फोकस रख रहे हो, और मैंने खुद पे भी अप्लाई किया है बाय राइटिंग, लिख के। सिर्फ सुन के लेक्चर ना सुनो प्लीज, लिखो जितनी चीजें लिख सकते हो। डायरेक्ट ये ऑर्गेनिक अब तक तो आपको चलो पता ही लग गया होगा, इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला बच्चे। ये आप सिर्फ फंक्शंस लर्न कर रहे हो रिएजेंट्स के। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ रिएजेंट्स लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप लिखो, पीसीसी है, CrO3 है, कॉपर एट 573 है, इनके फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं तीनों? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। एक चीज ये पता लगी। फिर इनमें एक एग्जांपल दिया मैंने स्पेसिफिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी जो ज्यादा यूज हो रहा है, मैं इन तीनों में से प्रेफरेंस दूंगा पीसीसी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। पीसीसी क्यों? पीसीसी इज वेरी सेलेक्टिव, इट ओनली ऑक्सीडाइजेज अल्कोहलिक पार्ट टू एल्डिहाइड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, सो अगर तीनों में से बेस्ट चूज करना है देन पीसीसी। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट करो। सर हो गया। हो गया? बाकियों का हो गया? किस बोल देना बच्चे जिसका नहीं हुआ। ठीक है, सर एक मिनट। हाँ जी।
हाँ जी सर, हो गया। हो गया, ठीक है। गगन, है तू क्लास में? ओके, हाँ देखो, मेन उसमें चल रहे हैं, रिएक्शन क्या थी, हाउ टू सेपरेट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। These two isomers are separated by steam distillation, ठीक है। पहले जो अब पहले समझाया है उसका दोनों में से आपको पता क्या लगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई है, पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। मिक्सचर है, एक कंटेनर सपोज करो, कंटेनर में दोनों आइसोमर्स हैं, ऑर्थो भी है पैरा भी है, ठीक है, एक ही कंटेनर में। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है पैरा का ज्यादा है, ऑर्थो का कम है, ठीक है। उस कंटेनर में से स्टीम पास करवाई, ठीक है। ऐसे बोल दूं, नीचे हीट दे रहे हो, ऊपर स्टीम पास हो रही है, ठीक है। किसके वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे, पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के, ठीक है। अब रीड करके देखो प्लीज, these can be separated by steam distillation. Orthonitrophenol is steam volatile, ठीक है, मतलब जिसे स्टीम पास करोगे इस पे, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू इट्स वेपर फॉर्म, लिक्विड से वेपर में आ जाएगा, ठीक है, और स्टीम में मिक्स हो जाएगा, स्टीम में मिक्स होके आगे चला जाएगा, ठीक है। बट पैरानाइट्रोफिनोल, बिकॉज उसका इसका पैरानाइट्रोफिनोल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, कैन नॉट बी made steam volatile, ठीक है, it will remain in the container, ओके। वो तो चलो एक वर्ड है स्टीम डिस्टिलेशन, बट मेन चीज जो याद रखनी है आपने, क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम है क्यों ज्यादा है, इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों केसेस में, एक में हो रही है इंट्रा विच लीड्स टू डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड आइसोमर में हो रही है इंटर which leads to increase in boiling point. Note down this question as well as answer. Structure आपने बना ही लिया है, so bracket में लिख देना refer to structure. Done? Okay. अब देखो, जो पे आपने कॉपी में रिएक्शन लिखी है नाइट्रेशन की, एक बार रीड कर लो, किसके साथ लिखी है रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज विद डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट के साथ ही है ना। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 से करें, पहले मिली डाइल्यूट HNO3 से क्या हो रहा है, डाइल्यूट HNO3 से फॉर्म हो रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। बच्चों 1
With concentrated sulfuric acid, nitration takes place at 3 position. Okay, ortho, in fact both ortho positions, anode. Okay, along with that at one para position. ठीक है, क्या कंपाउंड है? इस कंपाउंड का नाम देखो ट्राई करके. दिस कंपाउंड इज 1 2 3 4 5 6. This compound is 2 4 6 tri nitrophenol. Trinitrophenol. Okay, but again important question, important point नीचे है that the yield, ये वर्ड मैं बहुत कॉमनली यूज करता हूँ. सो आपको पता लग गया होगा. यील्ड परसेंटेज प्रोडक्शन, मतलब कितने परसेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए. okay, is not very good. Yield is poor. ठीक है, therefore the above reaction is not a preferable method. It is not a preferable method to prepare picric acid. Okay, it is not a preferable method to prepare picric acid. This 2,4,6 trinitrophenol is picric acid. Okay, okay, yield is poor. Obviously, this is not a good method. But फिर कौन सा? Picric acid is prepared by treating phenol first with H2SO4, okay, followed by its treatment with nitric acid. देखो कैसे. First phenol is treated with concentrated sulfuric acid. ये प्रोडक्ट फॉर्म होएगा 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड. सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, आज मैंने कुछ बच्चों ये भी एक्सपीरियंस किया है. SO3H जब भी पढ़ते हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये है क्या चीज है. मैं इजी करता हूं इसे. यहाँ पे देखो OH ग्रुप. OH क्या होता है बच्चे? OH इज अ फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कोहल. यही है ना? ये भी आपको पता होगा. COOH ग्रुप इज फंक्शनल ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड. मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस क्लास में आइडिया होगा इसका. OH इज अल्कोहल, COOH ग्रुप इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, इन सिमिलर वे ये थोड़ा कम यूज होता है बट फंक्शनल ग्रुप है. SO3H, इट इज सल्फोनिक एसिड. ठीक है, सो इससे डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं देना, इसका नाम याद रखना है. SO3H इज सल्फोनिक एसिड ग्रुप. सो ये कंपाउंड क्या बना? फिनोल को जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं, इट विल फॉर्म फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड. okay, 2,4 disulfonic acid. Okay, this 2,4 disulfonic acid is further treated with concentrated HNO3. Product formed as OH, NO3, NO3, NO3. Oh, NO2, sorry, NO3 बोल दिया ना, NO2.
O2, ठीक है, क्या बना? You will get picric acid. Note down this reaction. हो गया? सो अगर आपको क्वेश्चन आए हाउ टू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड, कैसे करोगे? द सेकंड मेथड जो अभी लिखा है, ठीक है, आपने ऊपर वाला मेथड नहीं लिखना, डायरेक्ट नाइट्रेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। पिक्रिक एसिड कैसे फॉर्म होता है? बाय फर्स्ट ट्रीटिंग फिनोल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड followed by treatment with concentrated nitric acid. तो आज आपने 2 कंपाउंड्स करे हैं प्रेपरेशन आज की। फर्स्ट वाज प्रेपरेशन ऑफ एस्पिरिन, सेकंड इज फॉर पिक्रिक एसिड, ठीक है। मेन हेडिंग है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनोल, ए पार्ट करा बच्चे नाइट्रेशन, बी इज हैलोजिनेशन। इसमें देख लो बी में अगर कोई डाउट है तो, if Br2 is used in CS2, carbon disulfide, this compound is carbon disulfide, it is used as solvent CS2, ठीक है। बेसिकली CS2 is used to dilute bromine, अगर इसे डाल्यूट करके डालें, ठीक है, then parabromophenols and orthobromophenol are formed. This parabromophenols is a major product and orthobromophenol is a minor product. Okay, but if bromine water is used, aqueous solution of bromine is used, then electrophilic substitution takes place at 3 positions of benzene ring. Agree? 2 ortho and 1 para to form 2,4,6. To form 2,4,6 trinitro phenol. अर्शदीप क्या हुआ? सर डिस्कनेक्ट हो गया था पहले। ओके, ठीक है। हैलोजिनेशन रिएक्शन में देख लो, वैसे सच कुछ क्या नहीं है, सिंपल ही है। अगर सिंगल पोजीशन पे हैलोजिनेशन करनी है देन ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड यूज करोगे, ठीक है। अगर तीनों पोजीशन पे हैलोजिनेशन करनी है देन ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन।
ठीक है, डन। ओके, अगर चलो हो गया, देखो क्वेश्चन फिर ये, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स of mononitration of 3-methyl phenol। मोनोनाइट्रेशन समझते हो? सिंगल नाइट्रेशन, सिर्फ एक बार इन NO2 ग्रुप आएगा। ट्राई करो। टेक योर टाइम, 2-3 मिनट्स ले लो, सिर्फ नाइट्रेशन ही देखना है जो अभी करा है। by using dilute HNO3 by using concentrated SNO3, वहीं से जैसे ए पार्ट है, मोनोनाइट्रेशन करनी है 3-मिथाइल फिनोल की। दिस इज फिनोल, थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप। अगर मोनोनाइट्रेशन करनी है देन नाइट्रिक एसिड कौन सा यूज होएगा? इट हैज टू बी डाल्यूट। अगर कंसंट्रेटेड करोगे तो 3 टाइम्स होएगा, ट्राई नाइट्रेशन हो जाएगी। देखो कुछ करो कॉन्सेप्ट फिट, क्या होगा, कैसे होगा? देन डाई नाइट्रेशन ऑफ this 3-methyl phenol दो पोजीशन पे, ठीक है। अगेन मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल इथेनोएट, CH2, फिनाइल इथेनोएट, फिनाइल OCO CH3, डाल्यूट HNO3। है कुछ आइडिया? फर्स्ट वन किया किसी ने? अगर मोनोनाइट्रेशन करेंगे then which will be the major product? Anyone? No? अनन्या, है कुछ आइडिया? सर पैरा पोजीशन पे आएगा नाइट्रो ग्रुप। किसकी पैरा के? दो एलिमेंट्स है ना, दो ग्रुप्स हैं, OH की पैरा पे या CH3 की पैरा पे? आंसर ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, पैरा पे आएगा, बट किसके पैरा पे? सर किसी की भी आ सकता है। नहीं नहीं, तो नाम लिख के देख ले, अगर OH के पैरा पोजीशन पे आएगा तो कंपाउंड अलग बनेगा, CH3 के पैरा पे आएगा तो अलग बनेगा। उसने क्वेश्चन यही पूछा ना, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट। आंसर तेरा मैं मान लिया, बिल्कुल परफेक्ट है। आइदर NO2 ग्रुप इस पोजीशन पे आएगा, ये OH की पैरा होगी, या CH3 की पैरा होगी, यहाँ पे आएगा, ठीक है। बट किसके पैरा पे आएगा? ओके चलो, ये वो आइडिया नहीं होगा, मैं करवा रहा हूँ। बच्चे OH के पैरा पोजीशन पे आएगा नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। रीजन, OH group is more electron releasing comparative to CH3, ठीक है। ये रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करता है,
प्रोडक्ट वो भी बनेगा, नो डाउट वो प्रोडक्ट बनेगा, पैरा पोजीशन वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट परसेंटेज यील्ड जो फर्स्ट की है वो सेकंड की नहीं होगी, ये भी बनेगा, बट वी आर इंटरेस्टेड इन मेजर प्रोडक्ट ओनली, सो मेजर पे फोकस करो। दिस इज मेजर, सेकंड वन इज माइनर। सर और हाँ जी, हाँ ऑर्थो वाला भी बनेगा, अगर कोई बोल रहा है बच्चा ऑर्थो बनेगा। और, हाँ जी दोबारा बोलो। सर ऑर्थो पोजीशन पे नहीं बनेगा। हाँ किसकी ऑर्थो, दोनों की ऑर्थो ले लूं, ये वाली, यही कह रहे हो? यस सर। हाँ जी बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल पर बनेगा वो भी प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन सिंस ये किसी की भी पैरा पोजीशन नहीं है, दोनों की ऑर्थो पोजीशन है, सो ये और भी कम बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ऑर्थो पोजीशन है ये सैंडविच हो रही है OH एंड CH3 के बीच में। देखो यहाँ पे ये साइज बड़े ग्रुप्स है ना, ठीक है, यहां तक अप्रोच करना NO2 के लिए वो भी डिफिकल्ट है, ये भी माइनर प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा जरूर, ठीक है, बट मेजर प्रोडक्ट इज दिस, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा क्या चेक करने हैं, ऑर्थो और पैरा पे ही प्रोडक्ट लगाने हैं बच्चे, ठीक है। इसमें देखो बी में ट्राई करो, हो जाना चाहिए अब। करो ट्राई, मैं बताता हूँ, ट्राई करना, डाइनाइट्रेशन है ना, दैट दोनों की पैरा पोजीशन पे तो लगे ही लगे ग्रुप आके। OH की पैरा पोजीशन कौन सी है, ये, CH3 की पैरा पोजीशन कौन सी है, ये, और हमने करना भी सॉरी नीचे वाले क्वेश्चन को करना था, यहाँ पे तो ये ग्रुप्स लगेंगे ही लगेंगे। प्रोडक्ट देखो, OH CH3 दोनों की पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दो, डाइनाइट्रेशन करनी है ना, सो एक प्रोडक्ट तो बन गया ये, ठीक है। इनफैक्ट मेजर प्रोडक्ट यही है, ओके, और बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, बट मेजर, इसमें किसी को डाउट है भी ये मेजर है या नहीं है तो देख लो। मैं इंडिविजुअली दोनों के करेक्टरिस्टिक बताता हूँ, पहले इस नाइट्रो के जो मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। ये क्या है, इसका करेक्टरिस्टिक क्यों है, ये सॉरी ये फेवरेबल क्यों है, इट इज पैरा टू OH ग्रुप जो कि हमें चाहिए, ठीक है पॉइंट, ठीक है। ऑल्सो क्या है बच्चे, ऑर्थो टू CH3 ग्रुप, ये भी हम दोनों फेवरेबल कंडीशंस है, ऐसा ही है ना, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनते हैं। अब डिस्कस करता हूँ ये दस ग्रीन NO2 में यहाँ पे क्यों पोजीशन लगाई है, बेस्ट थिंग इट इज पैरा टू CH3, ठीक है, एंड ऑर्थो टू OH, दोनों कंडीशन, दैट इज व्हाई, ठीक है। सो रैंडमली कहीं पे भी कोई पोजीशन नहीं लगाना, कोई ग्रुप नहीं लगाना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, सेलेक्टिवली। लास्ट है मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल इथेनोएट। सो सबसे पहले यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल इथेनोएट। Ethanoate is this 1 2, it is ethanoate,
दोबारा देख लो कैसे बनाया मैंने स्ट्रक्चर 1 2 एक्सक्यूज मी सर इट इज इथेनोएट ठीक है दिस इज फिनाइल this group is phenyl so phenyl ethanoate dilute HNO3 किस पोजीशन पे जाएगा ग्रुप पैरा पे this group is para directing so product is OCO CH3 और पैरा पोजीशन पे इसके लगा दो NO2 ग्रुप okay